So I continue with the question which I put up recently, that I want you to tell me all about your observations based on your experience, and also if you can give some kind of suggestion for the problem that you are facing and for an improvement in whatever we are doing. Yeah. So, Sophia, if you can put it again so that it can be put on record, whatever you said just now. I'm doing this for the simple reason so that everything is in record, so that whatever we think for the monotonous thing that you were saying and all. And also those who are not there, they can also listen as to who said what. So that will be helpful to all those who are not in this session. So that is why I'm getting this recorded. Yeah. Yes, sir. So before that, I mentioned that this newsletter has provided us a platform to know the structure, so we know how to write. And even as Nikita mentioned, that we wrote several book reviews and movie reviews as well. So it also gives us a sense of how to write it and give an analytical point of view. And coming back to that monotonous point, so basically I was stating that it has happened several number of times with me because of the same pattern. We write in the same pattern we write, and this pattern has been created for a reason, I understand. But it is somewhere boring for a person to write in the same way. That is why reporters end up procrastinating. Okay. Yeah. Priya. सर जैसे कि इसने बोला when we talk about film reviews तो वहाँ पे we have liberty कि हम उसे अपनी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स की पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि सभी फॉर्मेट ज़्यादातर सेम ही होते हैं पिछले साल के इस साल के, तो वो मोनोटोनस हमें वहाँ पे भी दिखाई देता है. और वही चीज़ है कि हमें भी बार बार वहाँ पे ऐसा लगता है कई बार कि यहाँ पे लिबर्टी कम है, हमें इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते थे मे बी, और किसी और फॉर्म में लिख सकते थे. 5W1 है जो हर बार स्टार्टिंग के 4 लाइन में जो फॉलो होता है, तो कई बार वो थोड़ा सा एक जैसा. So I was saying about the book and movie reviews. This newsletter, since it has given us an opportunity to write various book reviews and movie reviews, so whenever I personally write a book review that for a book that I've read, so I also go online and look for more reviews to get a better perspective, to get a new perspective, because I'm sure I'll get one there. I also find ways to write an article critically, write a review critically, so that my reader also knows that there are many ways to look at one thing, and there's like no sense in limiting yourself to just one thing. Okay. Anybody else who want to say something? बताओ मनुष्यनी. सर एक चीज़ पूछना था ये कि अगर हम अपना न्यूज़लेटर देखें, बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ आवर न्यूज़लेटर, तो वहाँ पे जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में बता रहे हैं. तो मतलब अगर मैं न्यूज़लेटर का पार्ट नहीं होती और मैंने कोई चीज़ सामने सेशन देखा है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ पे जाती वापस से पढ़ने के लिए. लेकिन मैं शायद तब जाती जब मुझे ये पता होता कि हमारी ही बैच से या फिर हमारी ही कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे वो कुछ व्यूज़ दे रहे हैं रिलेटेड टू मीडिया. आज मीडिया में क्या हो रहा है या फिर कहीं भी मतलब हमारी सोसाइटी में क्या है, बेसिकली वी आर मीडिया स्टूडेंट्स, तो वी वांट दैट कि वहाँ पे वो चीज़ हो. तो अगर ऐसा कोई सेगमेंट आ पाए न्यूज़लेटर में तो वो थोड़ा सा और इंटरेक्टिव होगा. और हमारे बीच आई थिंक एक तरह का ये चीज़ आएगा कि कौन कितना अच्छा किसी चीज़ के बारे में फील करके लिख सकता है. हो सकता है कि मैं कोई इशू ले लूँ, मैं उस पर कुछ अपनी व्यूज़ देना चाहूँ, वो उसके बाद एडिटर्स सब एडिटर्स के बाद जाके चेक हो ऑफकोर्स. तो अगर ऐसा कोई हो सके तो और ये इंस्पायर भी कर सकता है लोगों को टू नो मोर अबाउट द टॉपिक And to write as well, because this can be a way to express their opinion about something, so it can be a motivator to encourage people to write. Yeah. Anybody else who want to speak something? मेरे हिसाब से तो जो मैंने ऑनलाइन सेशंस के लिए बुकिंग करी थी, तो सोफिया आई कैन वालों कोई बाहर से बंदा, बाहर से इंसान को आता था सेशन लेने के लिए, तो कई बार काफ़ी कंट्रीज से लोग कनेक्ट होते थे ऑनलाइन जूम के थ्रू, वो बोलते थे. तो एक तो उनका एक्सेंट समझ के लिखना, क्योंकि कोर्स फटाफट अगर डिस्कशन होता है तो उनके कोर्स लिखने के लिए हमें मतलब काफ़ी अलर्ट रहना होता है.
बट अगर कोई मतलब बाहर का इंसान बोल रहा होता है या जूम के थ्रू भी कनेक्टिविटी इशूज होते हैं तो उसको जो कोड हम लिखते हैं वो आधा रह जाता है, कई बार हम पूरा नहीं कर पाते। और आई कैन जैसे रिपोर्ट्स के लिए हम क्योंकि उसी दिन रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, हम लोग यूट्यूब का भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंट हो तो हम फिर भी सुन के दोबारा लिख सकते हैं। वो चीज़ मैंने प्रॉब्लम फेस करी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? So, like at the end of this book, we have the segment like interviews with teachers, जो हम डालते हैं के लिए. Maybe we should add on a page where students around from our college could maybe have their creative space there. If they like poetry or writing like, on topics like mental health, body positivity, social media issues, topics को relatable है अभी हमारी generation के हिसाब से. They could write their feelings or क्या तुम्हारी जनरेशन के हिसाब से क्या क्या बताया तुमने? बॉडी पॉजिटिविटी को लेके एक तो पॉजिटिविटी तो जनरेशन स्पेसिफिक थोड़ी है, सभी के लिए चाहिए। नहीं, this generation is talking about it more. It's trending Openly and about honestly. trending. अबाउट पॉजिटिविटी, Body positivity. बॉडी For पॉजिटिविटी, example. ओके ओके। और सर इस वर्ड को लेके भी ना थोड़ा एक टॉक्सिक कल्चर भी आ रहा है कि मे बी बॉडी पॉजिटिविटी के नाम से लोग अपनी लाइक हेल्थ पे इतना वो नहीं करेंगे। आई एम फाइन, आई एम ब्यूटीफुल द वे आई एम, बट एक डिमार्केशन लाइन होती है कॉन्फिडेंट हो और हेल्दी हो जाते हैं, तो इसमें भी टॉक्सिक नेचर टॉक्सिक थिंकिंग आ रही है। तो अब गिविंग टॉपिक्स कि हम इन टॉपिक्स में लाइक क्रिएटिव ठीक है, चलो जितने भी जवाब आए पहले मैं उनको रेस्पॉन्ड कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो प्रिया ने या सूफिया ने पॉइंट उठाया, सो द चैलेंज इज़ हाउ टू मेक द न्यूज़ लेटर इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ it can be made interesting at two levels. One, at the level of the content, and another is at the level of presentation, which also include designing presentation and all, right? Now, here you should understand the nature of the newsletter. What exactly a newsletter is. You all have been working, and many of you have been writing well, because a final edit is done by me. So even if I don't remember somebody's face or name, but then obviously I know if I ask if you ask me that if I acknowledge somebody or recognize somebody by name, so mostly I know कि इसने स्वास्तिका ने ये स्टोरी लिखी है या सजल ने ये स्टोरी, नाम से मुझे पता है. सो आई कैन मेक आउट, आई एम एक्चुअली फैमिलियर विद द राइटिंग स्टाइल ऑफ ईच वन ऑफ यू, because continuously I have been reading the stories written by you all. Now the point is, firstly, though you have been working since long, but then do you understand actually the nature of the newsletter, which is a big challenge to make you this understand. And since long, that is why I have been asking your teachers to have this kind of sessions wherein at least some interaction happen. In fact, not only that I am interacting with you today, otherwise also formal or informal, some such kind of interactive sessions should take place between you people and the teachers concerned, because that gives you and us more clarity on what all we are doing, since we are doing it in a very stereotyped manner. So every time you are assigned a story, you write a story, the stories are edited and put on the page, but we never try to understand where the things have gone wrong, where the things have are on the track, or where there are chances of improvement. And I don't know how many of you have been interacting among yourselves, because when we talk about a final product, whether it's a print product or a video product, the first and the foremost thing is that all the members of the team should work as a unit, for which whether online or offline some interaction should take place. Either it could be interpersonal, wherein Sufia and Priya are discussing कि मुझे ये story मिली है, इसमें और हम क्या नया कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं. I don't feel that you are ever discussing things. So interpersonal communication is also lacking. करती हो? चलो तो तुम करती हो, but as a whole it does not happen, right?
एंड देन ग्रुप डिस्कशन में भी, फिजिकल स्पेस में भी, आई डोंट फील कि तुम 4 लोग बैठ के कभी बात करते होगे कि क्या है और न्यूज़लेटर में कर सकते, दैट्स मिसिंग समवेयर। ऑनलाइन के ज़माने में भी वो डिस्कशन पॉसिबल था, एक बार शायद मैंने किया भी था, बट जिस तरह से होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। तो इसलिए इस तरह की एक्सरसाइज में बहुत समय से प्लान कर रहा था कि इस तरह का एक इंटरेक्शन होना चाहिए। नाउ फर्स्टली टू टेल यू व्हाट ए न्यूज़लेटर इज़, if I believe many of you would not have ever looked into what a newsletter is as a product, right? When we look at different kind of print products, so we know that there is a newspaper which is a daily newspaper. We know that there are weeklies, there are fortnightlies, there are monthlies, then different natures, political magazines are there. Even in newspapers, most of the newspapers have a political orientation basically. Then also business newspapers are there, then there are trade magazines and so many light reading magazines or film magazines, so much variety is there. But then when we properly look at a newsletter is a product which may be taken out by an educational institution or any corporate organization or even by the public sector undertakings, government departments, but it's not a much used product in fact. बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस न्यूज़लेटर नहीं निकालते। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लैब जर्नल निकालते हैं, ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वो लैब जर्नल निकालता है, वो उनके करिकुलम का हिस्सा है। तो जो भी इंग्लिश जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक लैब जर्नल निकालते हैं। अभी मैं रिसेंटली एग्ज़ाम लेने गया था आईपी कॉलेज फॉर वीमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी वो पूरा उनका एक प्रिंट प्रोडक्शन का पेपर था जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने ग्रुप्स में लैब जर्नल्स निकाले हुए थे, ठीक है। नाउ वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए लैब जर्नल, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा क्लोज प्रोडक्ट है न्यूज़लेटर के वो लैब जर्नल है, keeping in view the work that is being done by the students in educational institutions. Now lab journal में there is a possibility कि आप reproduce कर दें contents को। आपने न्यूज़पेपर से कहीं से भी कंटेंट लिया, उनको या तो रिप्रोड्यूस कर दिया या कुछ चेंजेस करके कर दिया, फोटोग्राफ्स भी वहाँ से उठा लिए, ठीक है। न्यूज़लेटर में ये नहीं होगा। न्यूज़लेटर हैज़ टू कैरी द ओरिजिनल कंटेंट्स, right? That is how we are trying to take out this newsletter on that pattern wherein the reporting is also involved. In most of the cases, the newsletter is a product which is produced on the desk. आपके पास contents हैं, आपने सिर्फ उसको लिखा, हेडलाइन लगाया, पेज पे प्लेस कर दिया, बट यहाँ तुमको रिपोर्टिंग भी करनी, राइट? तो इसके दो पर्पज़ हैं। एक पर्पज़ ये है कि हमारे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स हैं, तो वो रिपोर्टिंग की भी आपकी प्रैक्टिस हुई, और इसके साथ साथ वो ओरिजिनल कंटेंट्स हैं, यू आर नॉट पिकिंग अप फ्रॉम समवेयर। एक एक शब्द जो हमारे न्यूज़लेटर में है दैट इज़ ओरिजिनल, राइट? सो दैट इज़ वन गुड थिंग. Now, if you also compare the newsletter which is taken out by the other two schools, the law school and the management school, there also you can find there is a very less emphasis on this. There are though the events which are happening in that particular school, those things are covered, but not much emphasis on there. There are a lot of stuff which is written by the teachers. And any opinion piece they write, anything they write, even the HODs and deans they write anything which appear on the first page and all. We have not adopted that practice. I have, with one or two exceptions, during the last more than 3 years, I have not written anything in the newsletter. Why? Because I wanted to create a product which is by the students, wherein they themselves are writing. Even teachers, I mean, it's not that the teachers are not allowed or teachers are not given that opportunity to write, but basically I wish that everything is written by the students. Sometimes somewhere the teachers are writing, right? So it is more an exercise for your learning, which also includes the reporting, which also includes editing, and which should also include the designing part, which is not happening the way it should have happened. You are reporting, you are writing, but then for
layouting, designing, page making, you are dependent on an external source, which should not have happened, but unfortunately that has been happening. We try to put this right on number of times, but it did not click. Sometime it happened, few issues were taken out by some, were made up, pages were made up by some students, but then that discontinued because of the COVID-19. Again we started that, boy Abhishek has been doing it, but then again the examination came and all these came, then again we are banking on the Anmolji. So now, so what I am trying to tell, there are three major components of learning: reporting, editing and designing plus layouting and page making. तो ये तीनों areas important हैं, 1, 2. As far as writing style is concerned, right? To whatever level we try to depart from the convention, but somewhere we need to stick to the convention. Like, what is that convention? In writing, any kind of writing on any platform, there are certain basics, certain fundamental things which are followed all over the world in all kind of publications, right? What is that? That is that everything has to be in the inverted pyramid style, and everything has to be based on 5 W's and 1 H. You can play with whatever things you want to do within that frame, but you cannot deviate that. Why? Because there are 2 styles of writing broadly. I believe in the senior batch, those who have studied reporting and writing would have studied it. One is pyramid, another is inverted pyramid. Everybody understands this, right? Now, pyramid style is followed always whenever you are writing an article. सब लोग समझते हैं इसको? When you are writing an article, okay, anybody who explains this further, what exactly is the pyramid style of writing? If you understand, tell me. The most relevant information from the top, and then That is inverted pyramid. pyramid में क्या है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, वैसे जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं उसके आसपास की और चीज़ें हैं, मतलब उसके कॉजेज होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं, और जो उसके पीछे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है वो आती है। और क्या होता है? हाँ, कंक्लूजन। ठीक है। कैसे इवेंट या जो भी हो रहा है उसको वन बाय वन करके जैसे हुआ है वैसे उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ। पिरामिड बहुत सिंपल है, इन लोगों ने बता दिया कि दोनों को मैं आंसर जोड़ दूं तो बहुत ठीक से तुम प्रेजेंट नहीं कर पाए। पिरामिड स्टाइल ऑफ राइटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला हुआ इंट्रोडक्शन, दूसरा हुआ डिस्क्रिप्शन, तीसरा हुआ कंक्लूजन। दैट्स इट। आप पहले अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स, जितने डिटेल्स हैं वो दे देते हैं, फाइनली आप उसको कंक्लूड कर देते हैं। सो इट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। बट ये 3 पार्ट्स है पिरामिड स्टाइल ऑफ राइटिंग के, राइट। नाउ पिरामिड स्टाइल ऑफ राइटिंग इज यूज्ड basically if you would have seen the editorial pages of newspapers, जहाँ पर जो middle होता है, that is pyramid style of writing. Even the editorial pieces, editorial comments, they are also pyramid style of writing, right? But in news, we use inverted pyramid, and this is used all over the world even today. There is no change in this. कोई उससे बेटर अभी तक सिस्टम आया नहीं है। सो एवरीबडी बिलीव्स इन द पिरामिड स्टाइल ऑफ राइटिंग एज फार एज न्यूज़ इज कंसर्न। सो आवर्स इज ए न्यूज़ लेटर। इवन न्यूज़पेपर्स में भी एडिटोरियल पेज को छोड़ के बाकी सारा इन्वर्टेड पिरामिड, केवल एडिटोरियल पेज जो है वो पिरामिड स्टाइल, राइट। तो इन्वर्टेड पिरामिड का जो सबसे अच्छी बात है, एनीबडी हु कैन टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, लीड न्यूज़, वो पहले भी पता लगा। मैंने कहा बेनिफिट बताओ क्या है। सर जो रीडर होता है वो अगर उसके पास टाइम कम भी है तो 4 लाइन में समझ जाएगा कि पूरी स्टोरी में कहना क्या चाह रही है, एक
So the story remains inconclusive in a way. हम कहीं से भी इसको रीड करना बंद कर दें, हमें कहीं से पता चल जाता है और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी रीड करें. स्टोरी रिमेन्स इनकंक्लूसिव. पिरामिड में कंक्लूजन देना है, तो वो अधूरी आपको लगेगा पढ़ने वाले को अधूरी है, 10 पैरे में भी हो सकती है और लास्ट मोमेंट पे हमने 5 पैरे काट दिए, इवन देन द न्यूज़ विल मेक सेंस. पिरामिड स्टाइल में कभी पॉसिबल कट गया तो समझ ही में नहीं आएगा क्या है. तो इसीलिए वो आज भी हम वैसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमेशा से ये प्रॉब्लम थी पूरी दुनिया में और आज भी है कि प्रिंट में भी थी और वीडियो में भी है कि क्या है कि हमें पेज पे जब स्टोरी पेस्ट की तो स्पेस कम पड़ गया तो 2 पैरे निकाल दिए. तो वो सूट करती है, इनकंक्लूसिव स्टोरी रहनी ही है. हम 12 पैरा लिखेंगे फिर भी हो सकता है कि उसके आगे भी कुछ लिखने को हो, 10 पैरा लिखेंगे वो भी तो हम कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं पैरा. तो दैट इज़ द मेजर एलिमेंट. एंड देन ऑब्वियसली one obvious thing, so this inverted pyramid earlier in 18th-19th century newspapers were writing in the pyramid style only. The inverted pyramid came during the Second World War. क्यों? क्योंकि अब न्यूज़पेपर आपने पढ़ना शुरू किया तो आप लास्ट पैराग्राफ में स्टोरी मिल रही है अगर आप पिरामिड स्टाइल करेंगे तो जब वॉर फ्रंट से एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड कि क्या हुआ कल, तो 2-3 लाइन में स्टोरी सबको चाहिए थी. एनिमी के कितने एयरक्राफ्ट गिरा दिए, कितने टैंक तोड़ दिए, कहाँ कहाँ एरिया पे कब्जा कर लिया, वो ही चाहिए पहले. सो दैट इज़ हाउ दिस होल इन्वर्टेड पिरामिड इमर्ज, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले, राइट. तो हमारा जो न्यूज़लेटर है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले. ये तो हो गया पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड. नाउ कमिंग टू 5 Ws in 1 H. ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा है, बट द वे आई एम ट्राइंग टू टेल यू सो दैट देयर इज एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन दीज इश्यूज. नाउ 5 Ws and 1 H. एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन मी 5 Ws and 1 H? जल्दी जल्दी. What, why, where, who और when, ये 5 चीज़ें और ठीक है. how. ओके, नाउ हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? सर मतलब कोई भी इवेंट है वो कब कैसे हुआ, मतलब इन सभी क्वेश्चन का एक आंसर वो स्टार्टिंग के 4 लाइन से 5 लाइन में मिल जाना, वही होता है 5 Ws. तो वही मतलब उसका That we follow in the newsletter as well. Hmm. Situation where it is. अभी तुम्हारी स्टोरी भी है, वो भी मैं आऊँगा अभी उस पर. ठीक है. एनीबडी एल्स हु कैन टेल समथिंग मोर? ठीक है, सिद्धांत रूप में तो ये पता लग गया, बट इसके अलावा एनीथिंग विच यू कैन टेल मी, एनीथिंग मोर फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग? चलो, 5 Ws and 1 H are important, but in today's journalism, mind it, our newsletter is taken out as per the modern trend of journalism. हम कोई वो स्टेल तरह का प्रोडक्ट नहीं निकालना चाहते. जिस तरह के न्यूज़ की दुनिया में जिस तरह से काम होता है, आई वॉन्ट द प्रोडक्ट ऑन दैट पैटर्न, राइट. एंड वॉट इज़ द लेटेस्ट, इवन नॉट लेटेस्ट, इवन आई मीन more than 10 years, 15 years have happened since the things started changing, which I am telling you now. 5 Ws and 1 H are not observed very religiously today. What does it mean? This means the conventional understanding was that all 5 Ws and 1 H should be answered in the first paragraph of the story, which we call as the lead of the story. ठीक है, जो फर्स्ट पैरा होता है किसी भी स्टोरी का, नॉर्मली आइदर वी कॉल इट द इंट्रो और लीड. सो इफ वी गो बाय द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ जर्नलिज्म, देन वी यूज टू कॉल इट एट इंट्रो 20-30 साल पहले. बट सिंस द टाइम दिस अमेरिकन इन्फ्लुएंस started happening on journalism, then terminologies में भी काफ़ी changes आए हैं. So we call it a lead. Lead is the first paragraph of the story, right? उसके साथ साथ जो दूसरा change आया which I am talking about is not all 5 Ws and 1 H need to be answered in the first paragraph, right? Now what are the options? Either if you feel that out of 5 Ws only 3 are important, rest 2 are insignificant, you can drop that. Sir, one thing I would like to add. This
after the invention of this pay-per-click system also, because what they are trying to do is they are not giving all the information in the first paragraph. I have been telling this in class also, and there is an option of read more, because once you will click onto a link, you are landing to a front page. Then you are reading the first paragraph, there are certain elements that have not been answered. Then you click on read more, then they are getting 2 clicks on that story. So after the invention of this clickbait, they are rigorously practicing this. Kind of enticing the readers to read further. And it's called hook. Hook. ठीक है. So from here you can also link another thing. Whatever changes I have been talking about and Kamil told you all, now there is lot of give and take between the print media and the digital media, because the basics which I have been talking about are from the age of print media only, when there used to be only print media, or to some extent in 60s and 70s television news also emerged on the scene. But then the way the digital media has encroached upon every walk of life, so now there is lot of influence of one on the other. So if you look at today's newspapers, many newspapers have done this. One important change that has come with the arrival of internet, the web media, the length of the story has reduced in newspapers. पुराने ज़माने में आज से 20 साल पहले 20 पैरे की स्टोरी हुआ करती थी, 4 पैरा फर्स्ट पेज पे और 15 पैरा अंदर के पेज पे होता था. Now that length of the story has reduced even in newspapers, right? Now one thing was there even in 1980s and 90s, since the time I have been practicing journalism, to make the stories interesting. Now that interesting element, to make the stories interesting, what was being done? एक मेन हेडलाइन देते थे, उसके ऊपर एक शोल्डर लाइन देते थे, या उसके शोल्डर लाइन नहीं दी, एक मेन हेडलाइन दी, उसके नीचे एक सब हेडलाइन देते थे, जो अभी भी उतना यूज़ होती है. हम न्यूज़लेटर में मैं जब भी हेडलाइनिंग करता हूँ मैं उस तरह से चेंज करता हूँ काफ़ी. इसके अलावा एक विंडो देते थे, जो एक बॉक्स आइटम देते थे, उसमें 4-5 हाइलाइट्स देते. पहले भी था, हालांकि ये अब बहुत फ्रीक्वेंट हो गया प्रिंट में डिजिटल्स की वजह से, क्योंकि आपको सिर्फ पॉइंटर्स में स्टोरी देनी है. ठीक है, हम प्रिंट मीडिया में क्या करते थे आज से 30 साल पहले कि हम उसका जब ब्लैक एंड वाइट निकलता था न्यूज़लेटर, तो उसका कलर बैकग्राउंड कलर बदल देते थे. तो वाइट, पूरा पेज वाइट पे ब्लैक है, ब्लैक बैकग्राउंड देके वाइट उसके ऊपर प्रिंट कर देते थे, कुछ टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स. नाउ अनदर थिंग विच हैज़ हैपेंड विच इज़ नॉट हैपनिंग प्रॉपरली इन आवर न्यूज़लेटर नाउ, दैट one story should be divided into at least 3 stories. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज शेख हसीना आई हुई हैं और शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर के बीच में विजिट हुई. शेख हसीना को सब जानते हैं ना? हाँ, कौन है? रुक जाओ. हाँ, अच्छा ठीक है. तो एक MOU क्या जो भी जॉइंट मेमोरेंडम हुआ उसके बारे में एक खबर है. अब क्या है कि वो आए तो एक जॉइंट मेमोरेंडम हुआ, वो एक न्यूज़ हो गई, या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों प्राइम मिनिस्टर की, वो एक न्यूज़ आइटम हो गया. इसके बाद वो आई, उनका कोई और इंगेजमेंट भी होगा, वो एक और स्टोरी हो गई. एक स्टोरी साइड लाइन्स पे होगी कि जब भी आई, जब भी मीटिंग में गई, रास्ते में इससे मिली, उससे मिली, इससे मीटिंग हुई, या सोनिया गांधी के घर चली गई, या एनीथिंग, लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल हैपन ऑन द पेरीफेरी. इवन तुमने अगर तुम लोग जितने लोग भी न्यूज़ फॉलो, कितने लोग न्यूज़ फॉलो करते हो वैसे? ऑनेस्टी से बताओ, सच बताना तब समझ में आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो तुम लोगों में जो लोग न्यूज़ फॉलो नहीं करते, तो तुम्हें न्यूज़लेटर में जो काम करने से जो सीख रहे हो, जो लर्निंग है, और जो तुम्हें काम करने का मज़ा आना चाहिए, वो नहीं आएगा, क्योंकि तुम रूट से हट के काम कर रहे हो. क्योंकि तुमको न्यूज़ की दुनिया कैसे चलती है, मैं इसको हमेशा न्यूज़ बेस्ड प्रोडक्टिव बनाना चाहता था. इसका मतलब क्या हुआ वो भी बता देता हूँ. न्यूज़ का मतलब है दैट वट एवर यू आर राइटिंग, वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट शुड बी डन विथ सीरियसनेस. न्यूज़ इज़ वन एरिया इन द एंटायर मीडिया फ्रेमवर्क विच इज़ अ सीरियस बिजनेस. ये एब्रेशंस हैं जो चैनल्स करते हैं, वो छोड़ दो.
आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर एंगल ओनली। तो टेलीविज़न में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। बट न्यूज़पेपर्स में अच्छा न्यूज़पेपर हो या इवन ख़राब न्यूज़पेपर हो, मतलब चाहे हम इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लें, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर लें, न्यूज़ में ज़्यादा मैनिपुलेशंस प्रिंट में पॉसिबल नहीं। तो प्रिंट में इट्स अ सीरियस बिजनेस, न्यूज़ इज़ अ सीरियस बिजनेस। सो एक जो मोनोटोनस होने और इंटरेस्टिंग होने की जो एस्पेक्ट है, चूँकि न्यूज़ एक सीरियस बिजनेस है, उसमें आपके पास देर आर लिटिल चांसेस to do something which makes that interesting, but still it can be made interesting in a limited sense. What is that? That along with the main story, any story that you are covering, you should always try to write a lag story. ठीक है, this I am talking in terms of the journalistic practices. Like तुम एक VIS का सेशन भी अगर कवर कर रही हो, उसकी एक लैग स्टोरी ज़रूर होगी, साइड लैग स्टोरी मतलब साइड स्टोरी ज़रूर होगी, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एलिमेंट, एनी इवेंट दैट इज हैपनिंग, कि वो क्या एलिमेंट है जिसको मैं अलग से लिख सकती हूँ। तो तुमने कभी किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। तो एक मेन स्टोरी होगी, एक लैग स्टोरी। इफ़ यू ट्राई टू मेंटेन दिस प्रैक्टिस, तो तुम्हारे पास जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म की प्रैक्टिस है वो ये है कि एक जो मेन स्टोरी है वो हार्ड स्टोरी होगी, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए आपके पास नहीं। अगर 4 समझौते में 4 पॉइंट पे सहमति हुई इंडिया बांग्लादेश की, वही है स्टोरी, उसको आप बदल नहीं सकते, कोई न्यूज़पेपर नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, वही है स्टोरी। इट्स अ हार्ड स्टोरी, सो यू कैन डू नथिंग अबाउट दैट। बट व्हाट यू कैन डू, आप उसका एक लाइटर नोट उसमें देखिए क्या है, उस लाइटर नोट को अलग से लिख दीजिए। यू आर गेटिंग इट, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सपोज हमने एक म्यूजिशियन पे VIS किया, तो सब पे कर रहे हैं, एक ही तरह से होता है, वो कुछ बोलता है, मैं कुछ सवाल करता हूँ, तुम लोग कुछ सवाल करते हो गया, और तुम उसको वैसे ही लिख दोगे तो मोनोटोनस तो होना ही है। अब उसमें क्या कर सकते हो, उसने जो प्ले किया सरोद, उसके बारे में आपने 5 लाइन अलग से लिखी और उसको एक बॉक्स बना के डाल दिया स्टोरी के साथ। वो लाइटर एलिमेंट हो गया, इंटरेस्टिंग लगेगा किसी को पढ़ने के लिए। और कोई पूरी स्टोरी नहीं भी पढ़ने जा रहा है, जो कि तुम लोग खुद ही नहीं पढ़ते हो, तो तुम वो लाइटर वाला पोर्शन पढ़ोगे, इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड, कोई पूरी स्टोरी भी पढ़ना चाहेगा उसके बाद। तो लाइटर एलिमेंट उसमें ढूंढो पूरी स्टोरीज में, तो उसको अलग से तुम ही को लिखना है। नॉर्मली कई बार मैं सजेस्ट करता हूँ, कामिल सर से बात होती है कि इसमें ये अलग से कर देते हैं, या कामिल भी सजेस्ट करते हैं, हम वो बाद में करते हैं उस एक्सरसाइज को, तुम ही करो, क्योंकि तुम उस प्रोग्राम को कवर कर रहे हो कि इसमें क्या लाइटर एलिमेंट है। तो विद इन दैट लिमिटेड इसको वी कैन मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो VIS में करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने की जो बात है, कि जो उसका पोर्टफोलियो जो प्रोफाइल होता है वो भी हम छापते हैं साथ में, BG वर्गीस में करते हैं, VIS में नहीं करते ना। VIS में भी करना चाहिए, लंबा मत छापो, तुम 4 लाइन ही छाप दो, 5 लाइन, जिसका VIS हुआ, पूरी रिपोर्ट अलग है, उसके साथ उसका प्रोफाइल भी अलग से जा रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे, और हम जो तुम दोनों लोगों ने कहा उसी का को मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे कि हमने VIS किया, VIS में हम एक AV बनाते हैं गेस्ट की, ठीक है। तो क्यों बनाते हैं, AV ना भी बनाए तब भी हो जाएगा, टू मेक इट इंटरेस्टिंग, कि एक उसकी प्रोफाइलिंग हो जाए गेस्ट की प्रोग्राम शुरू होने से पहले। यही हम प्रिंट में कर सकते हैं कि हम 4 या 5 स्नैप्स लें जिस गेस्ट पे VIS हुआ है, उनका एक कोलाज बना के दे दें उस स्टोरी के साथ, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो सबको थॉट देना पड़ेगा, मैं इंस्टेंट थॉट्स आ रहे हैं, मैं बताता जा रहा हूँ तुमने जो कहा उसको। तो ये न्यूज़लेटर या कोई भी ऐसे एक्सरसाइज है ना, ये जितना यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड मेंटली एंड यू हैव टू थिंक इसको और क्या कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सोचोगे नए आइडियाज़ आएंगे। आइडिया जनरेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज वेदर यू आर टेकिंग आउट ए न्यूज़लेटर और मेकिंग ए वीडियो प्रोडक्ट।
इतने सारे हम जो काम करते हैं, जो मैं अपने आइडियाज़ लाता हूँ, काम करता हूँ। मैं आइडिया ले आया, माई स्टोरी हो गई। मैं आइडिया ले आया, टॉपर स्टॉक हो गई। बट तुम लोग भी आइडिया लाओ, जितना नए आइडियाज़ आएंगे। इंटरेस्टिंग बनाने का किसी भी काम को यही तरीका है, नए नए आइडियाज़ लाओ और उनको इम्प्लीमेंट कर दो। और ये सभी के, एनीबडीज आइडिया इज़ वेलकम। लेकिन इस तरह की चीज़ें तो ये रिपोर्टिंग के लेवल पे ही तुम्हें करनी होंगी कि ये हम कर दें, तो वो एडिटिंग के लेवल पे या फाइनल डिसीजन मेकिंग के लेवल पे काम कम हो जाएगा। और मेरे पास सिर्फ मेरा आइडिया है, तुम 4 लोग होगे, तुम्हारा 4 लोगों का भी आइडिया ऐड हो जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी बेटर। ठीक है, इसीलिए जो मैं कह रहा कि तुम लोग आपस में कितना बात करते हो, वो बात करने से ही होगा। बहुत सारी चीज़ें व्हेन यू डिस्कस समथिंग, इंटरैक्ट एंड समथिंग कम्स आउट। इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने न्यूज़पेपर्स हैं, जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं, तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पहला काम मॉर्निंग में क्या होता है? पहला काम मॉर्निंग में क्या होता है बताओ, किसी को अगर पता है? किसी भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में दिन कैसे शुरू होता है? सबसे पहले न्यूज़पेपर में रिपोर्टर्स की मीटिंग होती है, एडिटोरियल मीटिंग भी कह सकते हैं एडिटर, लेकिन बेसिकली इट्स असाइनमेंट की मीटिंग होती है या रिपोर्टर्स की मीटिंग, कहने का मतलब है। क्यों? मॉर्निंग में सब बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज हमें क्या कवर करना है उस दिन, जो भी शेड्यूल्ड चीज़ें हैं उस दिन की, क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है। जो 5 दिन भर के असाइनमेंट्स हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है, वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम सही जो जर्नलिज्म की भाषा में कहते हैं कि पोस्टमार्टम करते हैं। हमने क्या छापा, दूसरे अखबारों ने क्या छापा, हमसे क्या छूटा, कहाँ गलती हुई। अब अगर गलती हो गई तो उसकी फिर हम डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सपोज़ कोई स्टोरी जो वैसी है, डेट वैल्यू की स्टोरी छूट गई, ठीक है, कहीं आग लगी और 4 लोग मर गए, एक अखबार ने छोड़ ही दिया, उसके रिपोर्टर को पता ही नहीं चला, अखबार छप गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में तो अखबार तो गया वो क्रेडिबिलिटी कि इनके पास तो खबर ही नहीं है। तो फिर डैमेज कंट्रोल ढूंढा जाता है, तो उसकी फॉलोअप स्टोरी, ओरिजिनल तो आपने मिस कर दी फर्स्ट हैंड, तो अब उसका फॉलोअप होगा, तो अब विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ लाके उस स्टोरी को अगले दिन चलाएंगे। तो ये पोस्टमार्टम होता है, क्या छूटा, क्या हुआ, और आगे के लिए प्लानिंग होती है, उस दिन के लिए प्लानिंग होती है, ठीक है, तो उसके आगे की प्लानिंग होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तो तुम लोगों की मीटिंग ही नहीं होती। तुमको मैंने कई बार कहा टीचर्स को कि वीकली मीटिंग्स होनी चाहिए तुम्हारी तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं आया। जो न्यूज़लेटर की टीम में पुराने लोग हैं, मतलब तुम फाइनल ईयर के बैच हैं, तुम्हारी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं आया। तुम्हारी तरफ से भी कभी कोई मुझसे ये डिस्कस करने नहीं आया कि सर हम और क्या कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं। नोबडी एवर केम टू मी। प्रिया, कोई आया कभी? कोई भी मीडिया के अंदर एक बात समझ लो अच्छी तरह से, मीडिया में कुछ भी काम कर रहे हो, न्यूज़पेपर से लेके मैगज़ीन से लेके टेलीविज़न चैनल से लेके फिल्म मेकिंग से लेके, इट्स ए कलेक्टिव वर्क। आइसोलेशन में कोई काम नहीं कर सकता, तुम चाहे जितने बड़े विद्वान से। आपको पता होना चाहिए कि टीम के साथ मिलके हम कैसे काम कर सकते हैं, तो सबके आइडियाज़ आएंगे, सबका कंट्रीब्यूशन आएगा, तो एंड प्रोडक्ट आपका बेटर आएगा। नहीं तो असाइनमेंट आ गया, तुमने लिख के दे दिया, एडिट हो गया, छप गया, ये बड़ी मतलब बहुत ही मैकेनिकल एक्सरसाइज हो गई। इसीलिए जो प्रॉब्लम तुम बता रहे हो, प्रॉब्लम तुम्हारी क्रिएट की हुई है, क्योंकि तुमने कभी सोचा नहीं। प्रॉब्लम तो ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बताया, सोल्यूशन नहीं ढूंढा। एवरी प्रॉब्लम शुड हैव ए सोल्यूशन एंड सोल्यूशन शुड आल्सो कम फ्रॉम यू, कि हम इसको कैसे मोनोटोनस ना रहे, ऐसी क्या कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे से करने की कोशिश करो। जितने मैंने अभी तुम्हें दिए सजेशंस, उनको, या तुम्हारे पास कोई सजेशन हो, इसलिए मैं तुमसे शुरू में जानने की कोशिश कर रहा था। अभी भी एनीबडी, एनी वन ऑफ यू, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, इंटरजेक्ट समवेयर, ऐड समवेयर, यू आर ऑल वेलकम। मैं इसको वन वे चाह नहीं रहा था, इसीलिए अभी भी मैं तुमसे और चीज़ें पूछूंगा कि मैंने भाषण दे दिया, तुमने सुन लिया, आधा इंटरेस्टिंग लगा, आधा नहीं लगा। वहाँ उसमें भी होता है कि हमारा जो वन वे कम्युनिकेशन 1.5 घंटे तक चलता रहता है और कोई सुनता ही नहीं है। हाँ बोलो। सर, जैसे मेंशन किया था कि राइटर या कुछ, तो एक ऐसा पेज होना चाहिए जैसे हम फोटोग्राफी का है हमारे पास, जो स्टूडेंट्स के बीच से ही जाता है, तो वैसा ही कुछ पोएम वे में भी हो सकता है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसी इमेजेस भी हो सकती है जो कि वैसे तो नीचे से हम डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ट्विटर पे होता है हमारे पास 250 वर्ड्स का एक वो होता है कि आप अपने में लिख सकते हो, हम यहाँ पे भी कर सकते हो। ज़रूरी
पहली चीज़ आपके पास आना चाहिए पहले, मतलब पहली चीज़ हु हैज़ स्टॉप्ड यू डूइंग दिस? तो किसने मना किया था कि ये मत करो? तो क्यों नहीं किया? मेरी आइडिया भी पहले था मेरे पास, लेकिन मैं हाँ, आइडिया आया, इम्प्लीमेंट कर दो। मैं तो किसी के आइडिया को मना ही नहीं करता, कभी भी नहीं करता, किसी भी टीचर के किसी आइडिया को मना नहीं करता। और यहाँ कोई फॉर्मल उसकी बात भी नहीं है, जस्ट दैट कि डिस्कस कर लो फॉर बेटर क्लैरिटी। इट्स नॉट दैट कि तुम्हारा आइडिया आया, कि ये कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं कि तुम्हारा आइडिया आया, फिर वो टीचर के पास गया, फिर HOD के पास गया, फिर मेरे पास आया, फिर मैंने फाइल साइन करके अप्रूव्ड लिखा, उसकी ज़रूरत तो है नहीं। तुम्हारे पास आइडिया आया, डिस्कस करो, फाइनल करो, शुरू कर दो। इतने इस तरह के सिस्टम में भी अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो कौन से सिस्टम में काम करोगे? इससे ज़्यादा तो ओपन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो नहीं सकता जो मैंने बनाने की कोशिश की है। मे बी कि उसमें पिटफॉल्स हों, तो इवन यू कैन टेल मी दोज पिटफॉल्स। इवन मैं स्पार्क में भी यही कोशिश करता हूँ। आई डोंट वांट टू रेगुलेट एनीथिंग, बट द ओनली थिंग आई वांट टू मेक श्योर दैट द वर्क हैपन्स। मतलब वो नहीं फ्रीडम दूंगा कि तुम कहोगे हम करेंगे ही नहीं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बिकॉज आई वॉन्ट की चीज़ें हों, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो मेरे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग काम करो, लेकिन तुम्हें इनिशिएटिव लेना सीखना पड़ेगा और ये आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। एक जो चीज़ है जो कई बार हुई है बट अगेन कंसिस्टेंसी नहीं है, जो तुमने कहा उन्हीं लाइंस पे कि मैं वॉक्स पॉप पे हमने कई बार प्रोग्राम्स किए कि किसी भी इशू पे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। इवन जो छोटे छोटे राइटअप्स की बात है, एलुमनाई जब जो भी पास आउट बैच है उसका हम अलग से देते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनके पीसेस देते हैं, वो सब 100 शब्दों के पीसेस होते हैं। तो इस तरह के हमने कई बार ट्राई किया, कई इश्यूज़ को लेकर डिफरेंट लोगों की क्या ओपिनियन है वो भी हमने कई बार ट्राई किया है, कई कई ओकेज़न पे किया है। इफ़ यू रिमेंबर, कोई एग्जांपल दे सकता है तो ये कामिल बताओ, ये हमने कई बार किया है जो वॉक्स पॉप छोटी जो बाइट्स लेते हैं इन लोगों की। बताओ अगर तुमने कहा हो कभी कि हम इस पे कर लें, तो हमारी तरफ से क्यों आता है, तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं आता इनिशिएटिव? यही तो बेसिक प्रॉब्लम तो यहीं पे है। एवरी वन ऑफ यू शुड लर्न हाउ टू टेक इनिशिएटिव एंड हाउ टू लीड। दूसरे का इंतजार मत करो कि जब कोई और बताएगा तब सोचेंगे। आप खुद ही आइडिया लेकर आइए, खुद ही एग्जीक्यूट कर दीजिए। यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू दैट। तो एसेंशियली वैसे हर इशू में एक वॉक्स पॉप बेस्ड स्टोरी ज़रूर होनी चाहिए, एंड दैट ऑल्सो अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट। एसेंशियली आई एम्फेसाइज ऑन दिस सिर्फ लाइन में, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना चेहरा देखना अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो व्हेन वी आर टेकिंग आउट ए प्रोडक्ट, जो वी हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग, मीन्स वी हैव टू मेक इट ए प्रोडक्ट विच लॉट ऑफ पीपल थिंक इज देयर प्रोडक्ट। उससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की। आपने खुद ही निकाला और निकाल के रख लिया, अपने रिश्तेदारों को दिखा दिया, दोस्तों को दिखा दिया, बाकी अब पढ़ा आपने भी नहीं और किसी ने भी नहीं पढ़ा, तो फिर हम निकाल क्यों रहे हैं इसको? हालांकि उसके अलावा भी उसका पर्पज़ है, एंड द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्पज़ ऑफ टेकिंग आउट ए न्यूज़लेटर, एंड पर्टिकुलरली द वे वी हैव बीन डूइंग इट इन DME, इज़ हैविंग ए रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन। हमने क्या किया है पिछले 5 सालों में, अभी किसी को जानना है 5 साल के न्यूज़लेटर उठा लो, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई और सबूत नहीं देना, कुछ और नहीं बताना। हमें भी रेफर करना है कि यार 2018 में इवेंट में इसमें क्या हुआ था, तो हम भी न्यूज़लेटर में जाके देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा इसका हिस्सा है, जो तुम्हें भी अगर 20 साल बाद भी देखोगे कि हमने 2020 में क्या किया था, वो अपना फ़ोटो देखो 2020 में इसमें मैंने एंकरिंग की थी, तो तुम्हें वहाँ मिलेगा या यूट्यूब पे मिलेगा। दोनों काम हम करते हैं, वीडियो पे भी डॉक्यूमेंटेशन है और प्रिंट का भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो विच इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, उसकी आर्काइवल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है अगर तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा हो तो। इसीलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ भी चाहता हूँ कि कवर हो, क्योंकि हम बाद में भूल जाएंगे, ह्यूमन मेमोरी में नहीं रहती चीज़ें, लेकिन डॉक्यूमेंटेड होंगी तो वो छपा हुआ है वहीं पे सारा कुछ।
न्यूज़लेटर में कंटेंट में क्या जाना चाहिए क्या नहीं। हालांकि तुम जो कर रहे हो पता है, फिर भी मैं जो इन्होंने कहा उसको 1 2 3 4 बता देता हूँ, ठीक है। 1, whatever activities are happening in DME Media School, वो नंबर 1, ऑनलाइन ऑफलाइन whatever, ठीक है। नंबर 2, any such activity which is happening in the other 2 schools which may be of some relevance to you people, those who are studying media, वो भी ले सकते हैं, जो हम बहुत कम करते हैं। बीच में कई बार मैंने कहा भी कमेल सर से कुछ एक आध चीज़ें ले लो। उन दोनों स्कूलों से भी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट, ठीक है। 3, एनी सच एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग एट द सेंट्रल लेवल इन DME, मीडिया स्कूल नहीं, सेंट्रल लेवल पे कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। 4, एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द मीडिया वर्ल्ड, जो नहीं होता, ये दिस इज़ मिसिंग हमारे न्यूज़लेटर में। सपोज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बी को मर्जर हो गया, सपोज NDTV का मालिकाना हक किसी और के पास चला गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द मीडिया वर्ल्ड, ये न्यूज़लेटर में हमारे मिसिंग है, जो होना चाहिए। कई बार मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, तुम लोगों तक फॉर्मल कम्युनिकेशन आज हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा, तो दिस कैन बी कवर्ड। देन कितना हो गया, 4, नंबरिंग करते जाओ। देन 5th या 6th जो भी, देन any policy announcement or any major announcement made by the government with regard to regulation or functioning of media, ठीक। सरकार कोई भी कानून लेके आई जो मीडिया के रिप्रेशन के लिए और या इवन रेगुलेशन के लिए या फंक्शनिंग से रिलेटेड है, या कोई एथिकल स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ लेके आई, दैट should also appear in the newsletter, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट, any such judgment of the Supreme Court or any of the High Court wherein media related issues have been discussed or any judgment has been made with regard to functioning of media, जैसे चीफ जस्टिस ने भी पिछले वाले ने कई बार कहा, मीडिया के टेलीविज़न चैनल्स के बारे में बोला, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कैरी करना चाहिए, ठीक है। We should not and we have not been carrying anything which is political in nature. When I say political, means the political controversies. We are not into that. A पार्टी ने B को क्या कहा, B ने C को क्या कहा, नहीं मतलब है, ठीक है। We can be critical of the government, anything that we are writing, if the context permits. What does it mean? Let me clarify this. Listen it carefully. Suppose सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट किया, अभी कौन सा आया था, और हाँ पेगासस का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि कोई एविडेंस नहीं मिला पेगासस को लेके एंड ऑल, बट उसमें उन्होंने ये भी लिखा है दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट कोऑपरेट, ठीक है, ये न्यूज़ है। इस तरह की चीज़ें, पेगासस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेगासस का जजमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ हम उसका एक पैरा दे सकते हैं, हमें डिटेल रिपोर्टिंग नहीं करनी है उसकी, क्योंकि इट्स सिंपली अ रिप्रोडक्शन। बट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इट्स रिलेटेड राइट टू प्राइवेसी। वो पूरा जो इशू है वो राइट टू प्राइवेसी का है, आर्टिकल 21 का है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये समझना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो टू दैट एक्सटेंट दैट्स इंपॉर्टेंट, बट ओनली 1 पैराग्राफ, मैक्सिमम कभी 2 पैराग्राफ, 100 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। उसका दूसरा तरीका है, वो अभी जो हमने बात की, उन्होंने जो कहा, तो जज ने 10 लोगों का वॉक्स पॉप लो, न्यूज़ बन गई तुम्हारी, दैट इज़ हाउ वी कैन डू इट। वो हमने 4 लाइन लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एंड वी टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट दिस, देयर व्यू पॉइंट, और वो उनके व्यू पॉइंट आ गए, तुम्हारी स्टोरी हो गई, ठीक है, बिल्कुल सही तुमने उठाया। इसीलिए मैं तो तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू रिप्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स, लाइवलीनेस चाहिए, जो तुम कह रही हो, इंटरेस्टिंग एलिमेंट चाहिए,
सबका टेक होना चाहिए उस पर, तो उससे फ़ायदा भी है। बहुत सारे लोग जो तुम लोग में नहीं पढ़ते होंगे, तो जब तुम कहोगे इस मुद्दे पर बात करनी, कुछ पढ़ के कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पूरी चीज़ों को सोचना है। लेकिन अब भारत तो बांग्लादेश में क्या समझौता हुआ, हमसे क्या मतलब, तो पूरा भरा हुआ है डिजिटल मीडिया, कोई भी पढ़ लेगा। हम 1 महीने बाद क्या बताएंगे, जो इसने कहा पुराना हो गया, बेकार हो गया। न्यूज़लेटर की नेचर से मेल नहीं खाता। न्यूज़लेटर में 2 बातें समझ लो, मैं बहुत बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ। 1 मिनट। एक, आपको डेट वैल्यू की स्टोरी नहीं लेनी, क्योंकि आपका तो 1 महीने बाद आएगा, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। डेट वैल्यू की स्टोरी नहीं लेनी। 2, ओपिनियन पीसेस नहीं लेने। ओपिनियन पीसेस ओनली टू दैट एक्सटेंट कि जजमेंट में 10 लोगों ने क्या सोचा, तो एक लाइन। ओपिनियन पीस नहीं लिखना है। एडिटोरियल इज एन ओपिनियन पीस, ओपिनियन पीस नहीं लिखना है। सबसे बड़ा खतरा जो है तुम सबके सामने, तो मैं अगर उस तरह से नहीं समझा है तो मैं अपने तरह से बता देता हूँ। सबसे बड़ा खतरा जो पूरे मीडिया के सामने है, तो तुम्हारी, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी लर्निंग ख़राब हो, इसलिए मैं तुम्हें जो बताऊँगा ठीक से बताऊँगा। सबसे बड़ा खतरा है कि हमारा पूरा का पूरा जर्नलिज्म ओपिनियनेटेड हो गया। इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ ओपिनियन है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो न्यूज़लेटर हम निकालते हैं, इट शुड बी एसेंशियली इंफॉर्मेशन बेस्ड। ओपिनियन पूरे न्यूज़लेटर में 5%, 10%, वो भी वॉक्स पॉप स्टाइल में। ये नहीं हुआ कि तुमने 10 पैराग्राफ लिख दिया, किसी विषय पर विचार व्यक्त कर दिया, वो नहीं चाहिए। उसके लिए तुम ब्लॉग लिखो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, न्यूज़लेटर में नहीं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ प्रिया बोलो। सर मैं वही कह रही थी कि वर्कशॉप भी हम वही कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं सबके पॉइंट्स तो आ ही जा रहे हैं, तो इंक्लूड हो ही जा रहे हैं। ओपिनियन ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आज तक नहीं लिखा 4 साल में कभी। हाँ मतलब मैं लिख सकता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी ओपिनियंस भी हैं, मैं वेल इन्फॉर्म्ड भी हूँ, मैं चीज़ों का एनालाइज भी कर सकता हूँ। मैंने आज तक नहीं लिखा, और मेरे न्यूज़लेटर मेरे हाथ में, जितना चाहे लिखूँ, मैं नहीं लिखता। वर्कशॉप भी काफ़ी है हमारे लिए, अगर हम सारे लोग लिखते हैं, बाकी दोनों स्कूल्स में लोग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, चूँकि उन्हें अपना फ़ोटो नाम देना होता है। मैं नहीं उसमें बिलीव करता। मैं क्यों अपनी ओपिनियन लिखूँ न्यूज़, इसलिए कि न्यूज़लेटर मेरे हाथ में है, तो मैं कुछ भी लिखूँ। तो इसका मतलब ये, मतलब दिस इज़ ए डिसऑनेस्टी ऑन माई पार्ट, कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए न्यूज़लेटर, प्रोफेशनल निकलना चाहिए, और फिर मैं हर जगह अपना विचार लिख दूँ उस पर। विचारों के लिए नहीं है न्यूज़लेटर, विचारों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरा, ओपिनियन के साथ एक और बहुत बड़ा खतरा है। whenever we try in the mainstream media, whenever we put too much emphasis on opinion, then anybody who is speaking either on a television channel or who is writing try to impose his or her opinion on others. जो imposition वाला element है वो सबसे ख़तरनाक है। आप सिर्फ अपनी ओपिनियन ही, दूसरों को आप चाहते हैं कि आपकी ओपिनियन से सहमत हों। दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक, जर्नलिज्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। एंड दूसरी जो ओपिनियन के साथ जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो ये है कि even those people who are not well read, who do not understand anything, who are not into the depth of the subject, even they have an opinion. जर्नलिज्म, डेमोक्रेसी में ओपिनियन रखना ख़राब नहीं है, बट अब तुम अभी बाहर चले जाओ, जितने भी पान वाले या तुम्हारे रेडी वाले हैं, तुम किसी से पूछ लो किसी इशू के बारे में, 90% लोग जो हैं तुम्हें अपनी ओपिनियन दे देंगे, ठीक है, ओपिनियन देंगे, बट उनकी उस ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। एनी ओपिनियन हैज़ टू बी ए वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो ओपिनियन उसी की होगी जिसके पास सारी सूचनाएं हैं, जो उन सूचनाओं को एनालाइज कर सकता है, और जिसके पास क्रेडिबिलिटी है, डोमेन नॉलेज है, क्रेडिबिलिटी है, कि लोग पढ़ें और माने कि हाँ ये सचिन तेंदुलकर ने पीस लिखा है तो अच्छा लिखा होगा, क्योंकि वो ही इज़ फ्रॉम दैट एरिया ओनली। अब कोई भी रिक्शे वाला लिख देगा कि ये क्रिकेट के बारे में, कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी की। तो ओपिनियन का कोई मतलब नहीं। हालांकि इसके साथ मैं ऐड करूंगा कि इंटरनेट के आने के बाद थोड़ा सा
हो गया डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एक्सटेंट दैट एवरीबडी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ठीक है, वो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करिए जिसको अपनी ओपिनियन ज़्यादा है। हालांकि उनका भी सारे प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ होता है, क्योंकि मोर देन द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन दोज प्लेटफॉर्म हैव बिकम द प्लेग्राउंड फॉर अब्यूजिंग द अदर पर्सन। उसमें भी क्या होता है, अब मेरी ओपिनियन से जो अलग ओपिनियन रखता है वो ट्रोल हो जाएगा, तो वो अलग प्रॉब्लम है। इसलिए अगर तुम लोगों को अभी, जब तक तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हें अगर किसी चीज़ से बचना है तो ओपिनियन से बचना है। सिर्फ पढ़ो और अपनी समझ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ओपिनियन के लिए लड़ाई करने के लिए पूरी बाकी ज़िंदगी पड़ी हुई है। लर्निंग के लेवल पे, ट्रेनिंग के लेवल पे ओपिनियन से बचो।